It is profit before interest and taxes. That is your earnings before interest and taxes divided by the interest on debt. So this is actually giving the safety margin for the firm कि प्रॉफिट कितना टाइम्स इंटरेस्ट पेमेंट को कवर कर सकता है, कितना सेफ्टी मार्जिन है फॉर द क्रेडिटर्स हु आर लेंडिंग मनी टू द फर्म. सो अगेन हायर द रेशियो better it is, because जितना ज़्यादा टाइम्स कवरेज होगी उतना ज़्यादा सेफ है to lend money to this firm. Say for example, you get that the ratio is 5 times. Now what does this mean? That the profit can cover the interest payment 5 times, or profit is equal to 5 times the interest that needs to be paid to the outsiders. So there is more flexibility with the firm to utilize the profits. प्रॉफिट मार्जिन भी आपको दिख रहा है कि इससे ज़्यादा है. अगर ज़्यादा होती है रेशियो तो बाहर वालों की पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास अपनी डिस्क्रिशन पे ज़्यादा प्रॉफिट है. सो हायर द रेशियो बेटर इट इज. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देयर इज वन क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. What you need to pay attention to is that here we are having profit before interest and tax in the numerator. So in this question, make the adjustment accordingly and calculate the ratio for the 3 years. आदेश आप टैक्स ऐड करो, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है. मेक दैट करेक्शन. Yes, it is 4.73 for the first year. 4.73 times. Unit of this ratio is times.
So yes, class, it is 4.73 times for first year, 7.22 times for second year, and 11.2 times for third year. Just complete it so that we can move to the next ratio. By that time, I am writing the formula for the next ratio. So I hope all of you have completed that question. Next we come to the last ratio under solvency ratios, which is capital gearing ratio. And as you can see, the formula is fixed interest plus fixed dividend securities divided by equity funds. So fixed interest जो है वो loans पे होता है और debentures पे होता है. And fixed dividend securities are your preference shares, because preference shares always pay fixed dividend irrespective of the profits of the company. On the other hand, equity funds include your equity shares plus reserves and surplus. Reserves and surplus, if there is any profit and loss basically from the last year, it is a fictitious asset and that is deducted here. Okay, now this ratio also you get in number of times. Now इस रेशियो के दोनों इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. अगर बहुत हाई है ये रेशियो, इसका मतलब आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज या फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इक्विटी फंड्स. सो हाई मींस दैट द कंपनी इज हाईली लीवर्ड. लीवर्ड का मतलब क्या होता है? ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट की सिक्योरिटीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में. The other name for this ratio is leverage ratio. So high means you are having a lot of debt in your capital structure, while low ratio means it is low levered. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डेट का फायदा नहीं उठा रहे, आप ज्यादा इक्विटी पे डिपेंडेंट हो. So depending on the nature of business, either of the two can have a negative interpretation. बहुत ज्यादा भी डेट नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए. मैम, यस अमन. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ fictitious assets? फिक्टिशियस जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस दिया होता है, या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस दिया होता है आपकी जब बैलेंस शीट वैल्यूज दी होती हैं, वो फिर हम इक्विटी में से माइनस करते हैं. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? हम एक बार ये बता दीजिए हाईली लीवर्ड और लो लीवर्ड का मतलब क्या है? हाईली लीवर्ड का मतलब ये है कि न्यूमरेटर ज्यादा है, आपने फिक्स्ड कॉस्ट बहुत रखा हुआ है अपने कैपिटल में,
तो उसमें रिस्क ये होता है कि सेव एक ईयर में आपको अच्छा प्रॉफिट आपने अर्न नहीं करा, तो फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर पेमेंट करनी ही करनी है, जबकि इक्विटी में कोई मैंडेटरी नहीं होता डिविडेंड। ठीक है, लो लीवर्ड का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर ज्यादा है, आप ज्यादा डिपेंडेंट इक्विटी पे हो, आप इंटरेस्ट जो वो है डिडक्टिबिलिटी which I explained you yesterday, that can save your tax, that benefit you are not taking. You're not reducing your tax liability as you are not using enough debt. So this is a very subjective kind of interpretation कि हाई अच्छा है या लो है, that all depends on the earning capability of the business and stability in earnings of the business. So this is a more of a financial kind of thing, financial ratio. Yes, Madhav? No, ma'am, I got it. Thank you. Okay, you got it. Yes, please solve this question, class. This is from your book. Is capital gearing, you can calculate both in times or in percentage also. So that would be correct. 30% is the correct answer. Then debt, equity, and interest coverage. I'll just check. Interest coverage is 10 times. Excuse me, ma'am. हाँ जी प्रणत बोलो.
मैम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे इसमें ऐड होगा ना ये डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे ये वाला अमाउंट? बेटा अब इसमें अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है। यस मैम। हाँ, तो कायदे से यस इंटरेस्ट इसमें ऐड होना चाहिए। तो मैम 10% नहीं आएगा ना फिर? 10 टाइम्स नहीं आएगा फिर? नहीं मैम। ठीक है, आप मुझे करेक्ट बताओ इसका कितना आंसर आ रहा है। Yes, all of you also pay attention. The phrase used is earning before tax. इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, so you need to add back interest and the amount of interest is 1,50,000. So numerator में 16,50,000 आएगा। प्रणत बताना आप कितना आ रहा है? 11%। How much? 11। 11 टाइम्स होगा फिर। इसमें 11 टाइम्स। Yes, that is correct. मैम आप सॉल्व करवा दीजिए वाला क्वेश्चन। हाँ माधव, लाउडली। मैम मैं बोल रहा हूँ आप सॉल्व करवा दीजिए वाला क्वेश्चन। इंटरेस्ट कवरेज वाला? यस मैम। हाँ, मैं करवा देती हूँ। So everyone can pay attention here. Interest coverage ratio is profit before interest and taxes divided by fixed cost. जितना amount of interest आपने pay करना है. So in our case, the profit is given before tax but not before interest. So we will add the interest here. इंटरेस्ट की अमाउंट है, आपके पास 15 लाख के शेयर्स हैं, उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो 1.5 लाख आपका इंटरेस्ट आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 1,50,000 विच इज द फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड इंटरेस्ट. So this will give you 16,50,000 divided by 1,50,000 which is equal to 11 times. The answer in your book is incorrect. Please make this correction. मैम कैपिटल गियरिंग वाला भी करा दीजिए। कैपिटल गियरिंग तो डायरेक्ट दिया हुआ बेटा. I'll just write it here. I'll write down the values. Fixed interest आपके पास 1,50,000 हो गया. प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको जो डिविडेंड देना है, अच्छा इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ, कितनी परसेंटेज है? 30,000, 3 लाख के शेयर्स हैं बट उनका डिविडेंड नहीं दिया हुआ. ओके, आई विल जस्ट चेक. ये मिसिंग है इंफॉर्मेशन आपके इसमें. ओके, एनीवेज आपको सिक्योरिटीज की वैल्यू चाहिए. फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज प्लस फिक्स्ड डिविडेंड सिक्योरिटीज. तो यहाँ पर I'll just take another page, otherwise it gets messy. Okay, so capital gearing ratio is fixed interest securities which are 15 lakh and 3 lakh is your preference shares which is the fixed dividend security. आपका equity है 6 लाख इंटू 10, 60 लाख. तो ये आपकी कैपिटल गियरिंग रेशियो होगी. 18 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख
0.3 टाइम्स और 30%, 0.3 टाइम्स और 30%। मैम इसमें हम फिक्स इंटरेस्ट में डिबेंचर्स नहीं लेंगे, जैसे इन्होंने दे रखा है हाँ, 10%। डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों लेंगे ना। तो जो आपने ये वाली अमाउंट ली है फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली, हाँ ये आपने तो 15 लाख ली है ना। हाँ, कितने डिबेंचर्स हैं? 15,000 डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। What is the value? Not the interest cost, but the value of fixed interest securities. डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। यस मैम। और प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू है 3 लाख। ओके मैम, ओके। ठीक है। We So don't have to calculate the interest like no, for no. this. This is actually the ratio between value of equity and value of these fixed cost securities. तो सिक्योरिटी की वैल्यू लेनी है, कॉस्ट नहीं लेनी उसकी। Okay, ma'am. ठीक है। Okay, so I'll take up two questions from your 10 years. One is from 16-17 and one is from 15-16 जो पेपर हुआ है आपका। So let's just start with the questions. So what you will see is कि जैसे मैंने आपको बताया था कि one question theory and one question practical, that is the weightage of this unit. इस यूनिट में रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, ये दोनों आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट वी विल बी कवरिंग। रेशियो वी हैव कवर्ड, टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। So B part of this question is for 10 marks. Start attempting, then we'll discuss the answer.
मैम हाँ मन बोलो। मैम कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉग्स. हाँ COGS। ओके मैम. नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा वाला रेशियो, नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेटा वो आपका होता है इक्विटी जो हम ऐड करके ओके कैलकुलेट करते हैं। ओके मैम. ओके ओके. नेट प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस एनी नेगेटिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके मैम. रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड होता है। Excuse me, ma'am. If you want, Excuse this me, is ma'am. your capital employed. Excuse me, Yes, ma'am. Ritvik, you have a question? Ma'am, in net profit to capital employed, net profit is after tax or before tax? This is net profit after tax. Okay, ma'am. हाँ, और जो लास्ट रेशियो है अर्निंग्स पर शेयर उसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। मैं उसका फॉर्मूला भी लिख देती हूँ क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली हमने करा नहीं है। But this is after interest and taxes, तो भी सेम ही अमाउंट लेनी है। बस मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप इसको डिवाइड करते हो। Ma'am, earning EPS is calculated after after tax. Yeah, after interest and taxes. Okay, ma'am. Okay. एंड इवन इफ जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो उनका भी डिविडेंड माइनस होता है, Okay, उसके ma'am. बाद डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से।